A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed a different practical problem related to the second last chapter, that is an incomplete record. So in the upcoming video, let's revise the very important chapter of part B of class 11 accountancy, that is in financial statement of sole proprietorship. So in today's video, we will revise and discuss a lots of the practical problem related to the trading account, profit and loss account and the balance sheet. And with the help of these questions, we will revise all the important formulas related to the gross profit, net profit, operating profit and the various other elements like a cost of goods sold, operating expense, non-operating expense, as well as the concept of direct expense and indirect expense. So without creating delay, let's move to the today's class. The first question which are related to the preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet with the help of the given additional information. And the question is question number 43. From the following trial balance of Messrs. Arjun and Sons as at 31st December 2013, prepare trading, profit and loss and the balance sheet. In this question, the drawing and capital is 18,000, 80,000, purchase and sales 82,600, 1,55,000, opening stock is 42,000, return outward is 1,600, return inward is 1,200, wages is on 4,000, power is a 6,000, machinery is a 50,000, and the furniture rent 14, 22,000 respectively. Insurance 3,600, bank loan is 25,000, debtors is 20,600 and the creditor is 18,900 and the cash in hand is 1,500. And the additional information number 1, that is in closing stock is rupees 64,000, wages outstanding is 2,400, bad debt 600 and the provision for bad and doubtful debts to be 5% on the debtor. Rent is paid for 11 months. Loan from bank was taken on 1st July 2013. Provide depreciation on machinery at the rate of 10% per annum. Provide manager's commission at 10% on the net profit after charging such commission. So in this question, let's we dictate and show all the additional information in the final account of the sole proprietorship. So according to this question, the first additional information is in closing stock. Closing stock rupees 64,000. Closing stock is rupees 64,000. So the first effect of the closing stock in this question, when we prepare the trading account, so it will be shown in the credit side of the trading account by closing stock, that is at 64,000, and also it is shown in the balance sheet in the asset side. So the first effect of the closing stock, it will be shown in the credit side of the trading account as well as it will be shown in the asset side of the balance sheet. The second effect, that is an wages outstanding, it is a second adjustment of this question. Wages outstanding rupees 2,400. So wages outstanding, firstly when we prepare the trading account, you know very well trading will be shown in the trading account because it is a direct expense. So according to this question, the wages is rupees 4,000. तो जब हम ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस शो करेंगे 4,000, so उसमें हम इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे in the debit side of the trading account. So total wages will be shown in the debit side of the trading account is 6,400. और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, so the outstanding wages will be shown in the liability side of the balance sheet, and only we will show the 2,400. Okay, it is the second effect of the wages outstanding. The third adjustment is a very important adjustment, is a bad debts rupees
600 and the provision for doubtful debts is to be 5% on the debtor. यानी इस एडजस्टमेंट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एडजस्टमेंट नंबर 3 that is on bad debts is rupees 600 and provision for bad debts you have to maintain at the rate of 5% on debtor. सो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है, एक पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में. तो जब हम फॉर दैट ट्रेडिंग अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, so the bad debts will be shown in the debit side of the PL and the provision which will be calculated at the rate of 5% on the debtor. So debtor की वैल्यू कितनी है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, और debtor कहाँ शो होता है, it will be shown in the asset side of the balance sheet. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, ये मैं एडजस्टमेंट का इफेक्ट बता रहा हूँ इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो data will be shown in the asset side of the balance sheet. So data will be a, according to this question, the data will be a 20,600 and the bad debts is 600. So पहले हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, bad debts. So data will be a 20,000 और फिर उस पर हम लोग क्रिएट करेंगे provision for bad debts. एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना परसेंट क्रिएट होगा, दैट इज एट 5%. तो 20,000 का 5% हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे. 20,000 का 5% दैट इज एट 1,000. सो टोटल bad debts and the provision for bad debt shown in the debit side of the PL account is 1,600 and बैलेंस शीट में the closing data will be a 19,000. ये मैंने चीजें बार बार आपको बताई हुई है और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. The next adjustment, adjustment number 4. Adjustment number 4 says that, because you can see that we required a lots of space, that the rent is paid for 11 months. The next adjustment is rent is paid for 11 months. So the adjustment number 4 is rent is paid for 11 month. हमें रेंट पे करना है 11 मंथ के लिए. तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट रेंट कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो रेंट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट. सो टू रेंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेंट, द अमाउंट ऑफ द रेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 22,000 is the rent and rent is paid for 11 months. So according to this phrase you can say that कि एक महीने का रेंट है आउटस्टैंडिंग है. तो एक महीने का रेंट कितना हुआ, 11 मंथ. तो इसमें जब हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, सो आउटस्टैंडिंग रेंट जब हम ऐड करेंगे इसमें, तो 22,000 का जो एक महीने का रेंट है यानी कि 2,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग. सो टोटल रेंट विल बी डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट इज 24,000. और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, सो आउटस्टैंडिंग रेंट ओनली 2,000 विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो आपने देखा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना रेंट शो करेंगे, 2000, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम कितना शो करेंगे, दैट इज एन ओनली 2000. क्योंकि आपको टोटल रेंट देना था 24,000 बट अभी आपने सिर्फ 22,000 पे किया है, 2,000 आपको और देना है. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5 says that एडजस्टमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग लोन फ्रॉम द बैंक, लोन फ्रॉम बैंक was taken on 1st July, was taken on 1st July 2013. यानी आपने जो बैंक से लोन लिया है वो 1st जुलाई को लिया है. तो जब आप इसका एडजस्टमेंट दिखाओगे तो पहले आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लोन पे जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसको कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. सो टू इंटरेस्ट, लोन कितने का था बैंक का, दैट इज एन 25,000. आपने अभी तक कितना पे किया है, 25,000. और जब आप बैलेंस शीट शो कर प्रिपेयर करोगे, तो बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे इन सारी चीजों को, यू विल बी शोन सच थिंग्स
दैट इज 25,000 का आपने लोन लिया, इंटरेस्ट आपका था 25, सॉरी फॉर दैट, लोन इज 25,000 का। तो आपने लोन कब का लिया है? 1 जुलाई को। क्या आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है? नहीं पे किया है। तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 25,000 का कितना परसेंट? फॉर 8%। कब का लिया है लोन आपने? जुलाई को। बुक कब क्लोज करनी है? 31 दिसंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 6 मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग है। सो 0,024, यानी कि 1,000 इज इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो लोन आपने लिया 25,000 रुपीज का, जिसका इंटरेस्ट देना था 8% से, तो 1,000 का इंटरेस्ट अभी स्टिल पेबल है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। द नेक्स्ट विल बी द प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। Adjustment number 6, provide depreciation on machinery at the rate of 10% per annum। आपको मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना मशीन है आपकी? मशीन है आपकी 50,000, उस पे आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले, तो डेप्रिसिएशन को कहां शो करोगे? इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 50,000। 50,000 का कितना परसेंट? 10%। यानी डेप्रिसिएशन आपको शो करना है पीएल अकाउंट के डेबिट में, दैट इज इन 5,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, सो यू विल शो द मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 50,000। उस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 5,000 एंड द नेट मशीनरी विल बी 45,000। Okay, so this is the solution of the all the adjustment which are given in this question. So while you solving this question in your copy, so please take all the adjustment, keep your mind very carefully. Okay, so let's we move to the next question of today's video, because all the things is very important for the examination. So please do not confuse any kind of the topic given in this video. And purchase the goods costing 90,000. परचेस कितना किया आपने? 90,000 रुपीज का। During the year, a sum of 6,000 was spent on freight inward. Freight inward पे खर्च किया। So आपका freight हो गया कितना? 66,000। Third information, at the end of the year, the cost of goods still unsold was 15,000. यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रहा है कितना? 50,000 एंड ब्रैकेट में दिया है रियलाइजेबल वैल्यू। कितना दिया है? रियलाइजेबल वैल्यू 12,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। Okay, and you have to find out the gross profit of this question. So this question is basically depend on the cost concept. और cost concept में आपने क्या पढ़ा है? cost concept में हमने पढ़ा है कि closing stock is valued। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि according to cost concept of accounting हमने पढ़ा था कि closing stock is valued cost price or realizable value whichever is less, दोनों में से जो कम हो। और ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं कहता, ये आपका प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट भी कहता है।
कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, जब आप उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा ना हो। रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, इग्नोर इट। बट अगर कम है तो उस पर आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको तब कम वैल्यू को ध्यान में रखना है। तो अगर जब हम, आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बिजनेस नया नया ओपन किया गया है, प्लस नेट परचेज गिवन है क्वेश्चन में, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो है कैरेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यू लेंगे तो दोनों में से जो कम होगी वो लेंगे। तो 15,000 एंड 12,000 में से दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, यस 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया जाएगा यहाँ पे, 12,000। So opening stock is not given, net purchase is 90,000, direct expense is 6,000 and closing stock is 12,000, not a 15,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 में से 12 गया तो कितना बचा, ये बचा 84,000। बिकॉज 6 में से 12 माइनस कर दो तो -6 हो जाएगा, -6 सीधे कर दो 80। So your cost of goods sold is 84,000 and the gross profit equals to sales is 1,20,000 and cost of goods sold is 84,000. So your gross profit will be the 0,006 and that is at 36,000. So your gross profit will be at 36,000. So please kindly note this question in your copy properly. Now we are moving to the next question which are related to the short answer type question. Question number 2, which are related to this topic, that is in rent paid on 1st October 2009. Rent paid on 1st October 2009 for 1 year, rupees 2,400, as well as rent paid on 1st October 2010, rent paid on 1st October 2010 for 1 year, rupees 3,200, and the question is rent shown in profit and loss account for the year ended 31st March 2010 would be। क्वेश्चन क्लियर होगा मुझे लगता है। कह रहा है आपने रेंट पे किया 2009 में एक साल के लिए 2,400 रुपए और 2010 में 1 अक्टूबर को पे किया 3,200 रुपए एक साल के लिए। सो इसका पेमेंट कब से कब तक होगा, वो होगा 1 अक्टूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये रेंट पे आपने क्या होगा 2010 में 30 सितंबर 2011।
और आपको 31 मार्च 2010 तक का बताना है कि रेंट कितना पीएल अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड। रेंट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रेंट दिखाना है हमें 31 मार्च 2010 में, तो ये कब से कब तक का रेंट होगा? ये रेंट होगा 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक का। आपको 2009 अप्रैल 1 से 31 मार्च 2010, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये 2011 होना चाहिए। तो आपको अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 का रेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आप पीरियड देखो तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 30 सितंबर 2000 रेंट का, जो अगर 1 ईयर की बात करें तो आपने कितना पे किया है? 2400। सो उसको पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रेंट का चार्ज चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2010 से 30 सितंबर 2010 तक का रेट अलग था, और उसके बाद 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2010 तक का 11 तक का रेंट अलग था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने का रेंट अलग था और 6 महीने का रेंट अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि आपने अलग अलग पे किया और अलग अमाउंट पे किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि रेंट पर मंथ सेम है। तो फर्स्ट ईयर का जो आपने रेंट पे किया है, 2400 रुपये पे किया है, तो इस साल का अगर आप एनुअली रेंट निकालो, मंथली रेंट निकालो, तो कितना आएगा? क्या आएगा? 200 रुपीज मंथली रेंट। और इसका निकालो तो कितना आएगा? ये आएगा आपका ये आपका पॉइंट में आएगा। मुझे 3200 को 12 से डिवाइड करो तो मुझे लगता है ये पॉइंट में आना चाहिए। यस, 266 यानी 267 रुपीज अप्रोक्स। इसका मतलब जब आप पीएल अकाउंट में रेंट को शो करोगे तो जो 6 मंथ का रेंट है वो किस हिसाब से लगेगा? 200 इंटू 6 यानी 1200 रुपीज लगेगा। ठीक। और बाकी के 6 महीने का जो रेंट है वो चेंज हो गया, वो हो गया 266 के हिसाब से आपका रेट लगेगा 6 महीने का 1600 अप्रोक्स। So total rent will be debited in the profit and loss account. So rent debited to profit and loss account will be a 2800, and my answer is fully correct. Okay, so please note down this solution in a copy. Let's we move to the next question. Next question is net profit before adjustment is 1,80,000, outstanding salary 10,000, prepaid insurance 13,000, and you have to calculate a profit after adjustment. So profit, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन था कि प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा अगर इंफॉर्मेशन आपकी हो कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है आपका 1,80,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस है 13,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन तो और कम टाइम लेते हैं। अब आप खुद देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? जिससे हम रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करते हैं तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? सर इससे हमारा एक्सपेंस घट जाता है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो आपका प्रॉफिट इन एक्सपेंस बढ़ेगा,
एक्सपेंस बढ़ेगा तो ये आपकी प्रॉफिट को कम करेगा। उसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, सो आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1,80,000 में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करना चाहिए और प्रीपेड इंश्योरेंस को प्लस करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉफिट को बढ़ाता है, एक्सपेंस को घटा देता है। सो 1,80,000 minus 10,000 plus 13,000. So your profit after adjustment will be a 1,83,000 and solution में भी यही आंसर गिवन है। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। So the next question which are related to the manager's commission, बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन दिया है। ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको यूटी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आए भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज रुपीज 21,000. If the manager is entitled 5% commission after charging such commission, और मैनेजर्स कमीशन जो गिवन है वो कह रहा है मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विल बी अ 5%. तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स कमीशन के दो फॉर्मूला होते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस rate of commission, and the profit is 21,000, rate is 500 plus 5. Because क्वेश्चन में दिया है मैनेजर्स कमीशन हमें कैसे निकालना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के बेसिस पे निकालना है। 21,000 इंटू 5 अपॉन 105। सॉल्व कर लो। 21,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, and your manager's commission after charging such commission will be a 1,000. अगर आप चाहो तो इन चीजों को चेक भी कर सकते हो कि अगर मैनेजर बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन मैनेज नेट प्रॉफिट कितनी है? 21,000। 21,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 20,000। और क्वेश्चन में कह रहा है ना 5% मान से 20,000 का 5% निकाल लो, 1,000 आएगा। क्योंकि ये जो 1,000 है ये एक ऐसी प्रॉफिट पे हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आफ्टर चार्जिंग, बट हमारे पास आफ्टर चार्जिंग का प्रॉफिट नहीं दिया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन which are related to this topic, that is in general manager gets gets 10% commission, 10% commission after charging such commission. जनरल मैनेजर को क्या मिलता है? 10% कमीशन मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे, एंड द अदर इंफॉर्मेशन आर if manager if gross profit is 70,000
gross profit 70,000 and जनरल एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं, विल बी अ 12,000 और इस जनरल मैनेजर में एक्सक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन, जिसमें मैनेजर्स की कमीशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। सो आप पहले क्या निकालोगे? नेट प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तो नेट प्रॉफिट कितनी आएगी आपकी? ग्रॉस प्रॉफिट में से जनरल एक्सपेंस माइनस कर दोगे, हो जाएगा आपका 58,000। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इज 10 अपॉन 110। सॉल्व कर दो, 58,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10 divided by 110, 5,272, 5272.72। सो अगर हम अप्रॉक्स देखें तो मैनेजर्स कमीशन कितना देंगे? 5,273।